Good morning, everyone. Welcome to our SS video class. As you know, we already completed our PA1 course. In that PA1 course, we have 4 chapters: first, second, 4, and 5. I hope you all completed whatever work is there and whatever work teachers given to you in fair notebook, in worksheet, in textbook. Okay, I hope you all completed that work. So after completing that all work by our side, we started our revision. Okay, revision means what? You have to रिवाइज योर सेल्फ मीन्स आप इतने दिन तक जो भी पढ़े हो उसको आप एक बार फिर से रीचेक करना है बिना देखे. इफ़ यू आर रीडिंग परफेक्टली, आप सही से रीड किए हो, आप अच्छे मन से पूरा ध्यान से आप रीड किए हो, तो आप बिना देखे रिवीजन करना चाहिए एज पर माय व्यू. ओके, So today we are going to do our revision chapter 1, universe and the earth. We already one part of this chapter completed. So this is second part of our revision. In first part we already completed MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, वो ऑप्शंस देख के आपको आंसर फिल करना है. सेकेंड वन इज़ फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो. थर्ड वन इज़ मैचिंग, मैचिंग मीन्स आपको ए कॉलम एंड बी कॉलम, you have A column in questions and B column in answers. You have to arrange the questions with answer, right answer. And third one is true and false, we already completed. Then one puzzle is there, that puzzle also we completed. These all you have to do yourself first, then I will going to send you PDF of answer copy. मेरा जब आंसर कॉपी आएगा तब आप खोल के अपना आंसर को टैली कर लेना. ओके, आई ट्रस्ट यू, you all are doing whatever I am saying to you now, you will do like this only. Okay children, today second part of our chapter 1 revision. In that chapter 1 revision we are going to solve short question answers and long question answers. Okay, in your PA1 you are not getting any question answers there, you will get only MCQs. Then also we have to revise short question answers and long question answers. Okay, so once again I welcome you for our revision. Now we already completed question 5 in last video. Today is our work is question 6. Children, listen to me. If you are doing good, you have to make a part of SS revision. आप एक नोटबुक लेके 6 नंबर नोटबुक में पूरा आधा पार्ट आप SS रिवीजन के लिए कर लो. मीन्स हमारा 5 चैप्टर का जो भी रिवीजन होगा वो आप उसमें ही लिखोगे. So whenever you want to revise and once again you want to read, it will helps to you. आपको पहले वाला क्वेश्चन कहाँ पे लिखा, सेकेंड वाला कहाँ पे लिखा, ऐसे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So you have to make a part of SS revision in 6 number notebook. You have to continue with the question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of chapter 1. Then after completing chapter 1, you have to start chapter 2 in that part only. ओके, तो आपको ये वर्क ईजी रहेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स.
In short question answers, you are going to write answers in 1 line or 2 line. आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मीन्स क्या है, लघु प्रश्न उत्तर मीन्स छोटे क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे आपका आंसर्स जो भी होंगे वो सभी सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन में होंगे. ओके. नाउ व्हाट आर स्टार्स. स्टार्स बोले तो क्या हैं. द स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस. स्टार में जो है, जैसे स्टार भी, सन इज ऑल्सो वन स्टार, सो स्टार आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. आंसर इज द स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. ओके. नाउ सेकेंड वन इज व्हाट इज एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बोले तो क्या है. ओके. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारा अर्थ जो है वो सम लेयर से, डस्ट और ये सभी से सराउंडेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. ओके. सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज यूनिवर्स. What is universe? यूनिवर्स बोले तो क्या है. यूनिवर्स इज अ ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपांशन हैविंग ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. क्या है यूनिवर्स बोले तो क्या है. हमारा यूनिवर्स जो है वहाँ पे बहुत सारे, द यूनिवर्स इज हैविंग गैलेक्सीज. बहुत सारे गैलेक्सीज है वहाँ पे. The universe is a huge and endless expansion of millions and millions of stars with all the heavenly bodies which are known as galaxies. heavenly body जो है हमारा planet, sun, star, ये सभी को हम क्या कहते हैं, galaxies. And our answer is universe. What is the crescent moon? What is the crescent moon? Crescent moon is the curved shape of the moon. आप सभी जानते हो हमारा मून का शेप बनते हैं. ओके. डिफरेंट शेप्स बनते हैं. ओके. उस टाइम में हम सम फेजेस ऑफ मून हम बोलते हैं ना, दीज चेंजेस आर नोन एज द फेजेस ऑफ मून. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप डे बाय डे. दिन बर दिन मून का जो शेप चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द फेजेस ऑफ द मून. सो जब हमारा अमावास आता है तो हमारा मून छोटा होते 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 जाते हैं. जब अमावास के नेक्स्ट डे पूर्णम आने रहता है आफ्टर 15 डेज, तब हमारे मून जो है चंद्र वो बड़े होते जाते हैं. जब हमारा फुल मून डे होता है तो हमारा आसमान में, स्काई में बहुत बड़ा मून दिखता है. उस डे को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा. फुल मून डे को हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं. सो आवर आंसर इज व्हाट इज क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून इज द कर्व शेप ऑफ द मून. मून का जो शेप कर्व होता है उसको हम कौन सा मून बोलते हैं, क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून इज द कर्व शेप ऑफ द मून दैट वी सी विदिन इन इंटरवल ऑफ 15 डेज. 15 डेज के अंदर हमें ये देखने को मिलता है. ओके. What do you mean by galaxy? आप galaxies means आकाश गंगा. हाँ, आकाश गंगा. In the universe our earth is okay. A galaxy is a huge collection of gas, dust, billions of stars and their solar system all held together by gravity. गैलेक्सी जो है इन सभी को ग्रेविटी की वजह से पकड़ के रखा रहता है, उसको हम गैलेक्सी कहते हैं. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम. हमारा सोलर सिस्टम बोले तो क्या है, सोलर सिस्टम. व्हाट डू यू, द अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारा अर्थ भी सोलर सिस्टम में एक पार्ट है. In the space, the sun, the planets, their satellites and the asteroid all together form the solar system. ये सभी मिलके क्या बनाते, in the space, the sun, the planets,
their satellites and asteroid means piece of rock and dust all together form the solar system with a being their center sun. सोलर सिस्टम में इन सेंटर में कौन होते हैं? सन के साथ प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉयड पीसेस ऑफ डस्ट, ये सभी मिला के हमारा स्पेस में जो सिस्टम बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं. ओके, नाउ 7th क्वेश्चन इज नेम द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. नेम द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and the Neptune. Children, what is the number of our Earth? third place is our Earth. Earth हमारा third place में सोलर सिस्टम में है. Now, what is moon? Moon बोले तो क्या है? Moon, what is moon? The moon is a celestial body and is the only natural satellite of Earth. मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये हमारा मून का अर्थ का गोल गोल घूमते रहते हैं. ओके, नाउ हु वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. हम जो मून पे जो लैंड करते हैं, स्पेस में जो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट. ओके, एस्ट्रोनॉट हम उनको कहते हैं. जो मून पे जाते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं. कौन थे वो पहले मून पे जाने वाले? द एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है द फर्स्ट मैन स्टेपिंग ऑन द मून. ओके, उन्होंने वहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे. वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही मून पे गए थे. What do you mean by Milky Way? Milky Way बोले तो क्या है? In the universe, our Earth is tiny part of the galaxy is called a Milky Way. Name the nearest and farthest planet of solar system. सब सोलर सिस्टम में इन सेंटर में सन होता है, सूर्य होते हैं. उनके नियरेस्ट मीन्स बहुत ही नज़दीक में, फॉरदेस्ट मीन्स बहुत ही दूर में कौन सा प्लैनेट रहते हैं? ओके, मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट. मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो पहले नंबर पे है और इसलिए वो नियरेस्ट है, बहुत ही नज़दीक प्लैनेट टू दी सन. सोलर सिस्टम में उसको पहला नंबर दिया गया है. नेपच्यून इज़ द फॉरदेस्ट प्लैनेट. नेपच्यून जो है वो सबसे लास्ट में है, इसलिए वो सूर्य से सोलर सिस्टम में लास्ट में है, इसलिए वो सबसे लास्ट का फारदेस्ट मीन्स बहुत ही दूर. मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट एंड द नेपच्यून इज़ द फॉरदेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ओके, हमारे मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट एंड नेपच्यून इज़ द फॉरदेस्ट planet of the solar system. Now 12th question is 12वें क्वेश्चन है name the celestial body which has their own heat and light. ओके, हमारा जो सोलर celestial body में हमारा जो उसमें stars are celestial bodies having their own heat and light. ओके, वो सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो खुद का हीट एंड लाइट लाते हैं. ओके, उनका खुद का हीट एंड लाइट होता है, उनको कौन बोलते हैं? हम स्टार्स बोलते हैं. ओके, आई होप यू ऑल विल डू दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी. आई होप यू ऑलरेडी ऑल आर रिवाइजिंग. ओके बेटा, बच्चों, मैं सोचती हूँ ये सभी क्वेश्चन आप खुद से लिखोगे बिना देखे, बिकॉज आप लोग अभी स्टार्टिंग से ही रीडिंग किए हो, आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. सो आप ट्राई करो, जिस दिन ये वीडियो आएगा उस दिन आप A6 नंबर में सभी क्वेश्चंस लिखोगे और ट्राई करोगे विथ अ पेंसिल. ओके, जितने भी आते हैं उतने क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने की ट्राई करो. और जो नेक्स्ट डे आपका आंसर कॉपीज़ आएंगे उस दिन आप उस आंसर को
टैली करके देख लो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आवर रिवीजन पार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो मिनिमम 3 लाइन्स और मैक्सिमम 6 लाइन के आंसर होते हैं, उनको हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बोलते हैं. ओके, आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर फर्स्ट वन इज मेंशन द फैक्टर्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. मेंशन द फैक्टर्स मीन्स आप लोग ये बोलो हम सिर्फ अर्थ जो प्लैनेट है उसमें ही क्यों अपना लाइफ बिता सकते हैं. ओके, ऐसे कुछ फीचर्स बताओ जो हमारे अर्थ पे हमारा लाइफ पॉसिबल है करके. ओके, so dear children, today we are solving long question answers. In that long question answers, first question is mention the factors that make life possible on the earth. जो factors में जहाँ पे जो गुण है वो कौन से गुण हैं हमारे लाइफ अर्थ में स्पेंड हम कर सकते हैं. नाउ आंसर, द अर्थ हैज़ अ एयर, वाटर, सॉइल, suitable temperatures and conditions which makes life possible on the earth. जो सुनो बच्चों, हमें जीने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल मीन्स फूड उगाने के लिए सॉइल चाहिए और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम अर्थ में रह सकते हैं. ये सभी हमें सिर्फ अर्थ जो प्लैनेट है उसी पे मिलता है. सो हम सब लोग अर्थ जो प्लैनेट है उसमें ही हमारा ज़िंदगी बिता रहे हैं. ओके, दिस इज़ फर्स्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. Sorry. Now second question is what do you mean by the rotation and revolution of the earth? Okay, rotation and revolution बोले तो क्या है? So हम जो है अर्थ जो है वो अपना एक्सिस में गोल गोल घूमता है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. और अर्थ जो है वो सन के 2 चक्कर लगाते हैं तो उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. व्हेन द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इट टेक्स 24 hours, इट इज़ कॉल्ड रोटेशन. When the earth moves around the sun, it takes 365 1/4 days. This movement is called revolution. ओके, ये दोनों मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन और रोटेशन कहते हैं. 24 आवर्स जो अर्थ अपने पथ में जो घूमते हैं उससे डे और नाइट बनते हैं. और जो चंद्र का चक्कर करते हैं रेवोल्यूशन में, उसमें हमारा सीजन्स चेंज होते हैं. विंटर, समर, रेनी, हाँ, मानसून एंड स्प्रिंग, ऐसे हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. ओके, और दिन और रात को रोटेशन कॉज होता है और सीजन्स के लिए रेवोल्यूशन कॉज होता है. रेवोल्यूशन मीन्स सूर्य का चक्कर लगाने के लिए हमारा अर्थ 365 1/4 डेज लेता है और अर्थ रोटेशन में खुद के चक्कर लगाने को 24 आवर्स का टाइम लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड लिविंग प्लैनेट. वंस अगेन सेम आंसर यू कैन रिपीट. फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका ही ये थोड़ा सिंप्लीफाई है. हम अर्थ में ही क्यों जीवन बिताते हैं. द अर्थ हैज़ अ एयर, वाटर, सॉइल, सुटेबल टेम्परेचर एंड कंडीशन टू सपोर्ट लाइफ, सो इट इज़ कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट. ओके, अर्थ में हमें सब कुछ मिलता है. जीने के लिए हमें क्या चाहिए, नेसेसरी थिंग्स जो हैं वो हमें अर्थ में ही मिलता है, इसलिए अर्थ इज़ अ सुटेबल प्लैनेट फॉर लिविंग. Which planet is called living planet? Earth is called a living planet. ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी हम पूछ सकते हैं. डैश इज द लिविंग प्लैनेट, अर्थ इज द लिविंग प्लैनेट.
Now, fourth question of long question answers. What do you mean by constellation? Give one example. Constellation बोले तो क्या है? We can see many group of stars in different patterns in the dark night, which are called constellation. For example, the Great Bear or a सप्तऋषि. जो रात में स्टार्स जो शेप्स बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन. उसका एग्जाम्पल है द ग्रेट बियर. आप जब स्काई में देखेंगे तो 7 स्टार्स एक के नीचे या एक ही लाइन में 7 स्टार्स रहते हैं, उनको हम सप्तऋषि कहते हैं और इंग्लिश में द ग्रेट बियर कहते हैं. नाउ fifth question is, what do you mean by phases of the moon? मैंने अभी आपको पहले बताया था ना, phases of the moon. phases of moon बोले तो the moon appears to change its shape day by day. These changes are known as the phases. ओके, मून जो डे बाय डे अपना शेप चेंज करते हैं, पूर्णिमा के बाद छोटे होते जाते हैं, अमावस के बाद बड़े होते जाते हैं. अमावस के बाद क्यों बड़े होते जाते हैं? क्योंकि फुल मून डे के दिन हमें फुल मून दिखाना होता है, इसलिए वो बड़े होते जाते हैं. पूनम के बाद अमावस आता है तो वो छोटे होते आते हैं. 2 days after the lighted face of the moon increases, so we get opportunity to see beautiful crescent moon. crescent moon हमें कब देखने को मिलता है? जब अमावस के 2 दिन बाद सन अपीयर होने लगते हैं स्काई में रात के टाइम में. उस टाइम मून का जो शेप होता है वो क्रिसेंट मीन्स कर्व्ड होता है. अमावस के दिन तो बिल्कुल मून नहीं दिखता है, पूरा काली रात होती है. अमावस के दिन आपने देखा है बाहर आके, उस दिन चांद दिखते ही नहीं है बिल्कुल. उसके 2 दिन बाद आपको लाइटेड फेस ऑफ द इंक्रीज मून थोड़ा इंक्रीज होके हमारे स्काई में दिखते हैं, उनको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं. कर्व्ड शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून. ये आपको कब देखने को मिलेगा? अमावस के बाद देखने को मिलेगा. नाउ कम टू द अवर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फेजेस ऑफ द मून? मून को जो फेजेस है उनको क्या बोलते हैं? The moon appears to change its shape day by day. These changes known as the phases of the moon. जो डे बाय डे मून अपना शेप चेंज करते हैं आफ्टर अमावस और आफ्टर पूर्णम, उसको हम चेंजेस को क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रिसेंट मून जो है वो हमें अमावस के 2 दिन बाद देखने को मिलते हैं. The visibility of moon gradually increases. We see the complete round bright full moon which is also called पूर्णिमा. जब हमारा पूरा चंद्रमा आकाश में कब दिखते हैं? फुल मून डे के दिन बहुत बड़ा ब्राइट वाला मून हमें दिखते हैं. डू यू नो चिल्ड्रन, एट आवर साइड, आई एम फ्रॉम कर्नाटक के जो हमारा जनवरी में जो भारत पूर्णम हम बोलते हैं, उस टाइम हम पूनम के दिन हम बाहर बैठ के खाना खाते. मीन्स उतना ब्राइटनेस होता है चांद, मून उतना ब्राइट होता है. हम सब लोग पिकनिक, मीन्स आप जब पिकनिक डे में मनाते हो ना कहीं गार्डन में जाके, बट हम खुले एरिया में, मीन्स हमारे साइड में सभी घर के सामने आंगन होते हैं और गार्डन होते ही मीन्स होते हैं. आप गुजराती में फरिया बोलते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ गार्डन के लिए हम जगह छोड़े रहते हैं. उस फुल मून डे के टाइम हम बाकी सभी स्ट्रीट के बाकी सभी शहरी के लोग हम इकट्ठा होके 2-3 फैमिली इकट्ठा होके अच्छे खाना हम फुल मून डे के टाइम विदाउट लाइट, कोई भी लाइट हम नहीं जलाते हैं, ना आर्टिफिशियल, ना हमें सिर्फ नेचुरल लाइट मिलती है. किससे मिलती है? मून से. यू हैव टू ट्राई. आप जिस दिन फुल मून डे होता है अपने पेरेंट्स से पूछ के आप अपने छत पे जाके देखोगे तो बहुत ही ब्राइट मून दिखता है और वो आप एंजॉय कर सकते.